پیارے نبی کی شان میں نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس قسم کے پیارے پیارے کلمات حبیب پاک کی خدمت میں نذران عقیدت کی طور پر کہتے ہیں طلع البدر علینا، نبوت کے بدر کا چاند سنی مقام سنی کی وداؤں سے آ رہا ہے، ودا کی گھاٹیوں میں سے آ رہا ہے۔ اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی حبیب پاک کی محبت میں آپ کی عظمت آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے کلمات نعتیہ بیان کر رہے ہیں۔ ادھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے ادھر بچیاں نعتیہ کلمات کے ذریعے مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، ادھر صحابہ کرام کی جماعت فرت مسرت سے دیدار مصطفیٰ ہی نہیں کر رہے ہیں، ہر ایک عاشق کی تمنا ہے، ہر چاہنے والے کی تمنا ہے آقا کے قدم مبارک میرے گھر میں پڑ جائے۔ ہر ایک عاشق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائیے۔ ہر عاشق کی یہی تمنا ہے، ہر صحابی رسول رضی اللہ عنہ یہی عرض کرتے یا رسول اللہ میرے گھر میں آئیے، ہر ایک کا جذبہ ہے میرے گھر میں آئیے، مگر یہ رحمت والے نبی ہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دل میں ایسی امت کی محبت ڈال دیا ہے، کسی کی آزردگی پیارے نبی کو گوارا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میں اپنی مرضی اور خوشی سے کسی چاہنے والے کے گھر کو اپنایا، ان کو میزبانی کا شرف بخشا، دیگر چاہنے والوں کے دل آزردہ ہو جائیں گے، ان کے دل میں غم طاری ہو جائے گا۔ اس لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی آزردہ ہو جائے، اس لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی مرضی سے کسی کے گھر میں نہیں اترنے والا ہوں، بلکہ میری اونٹنی کا مہار چھوڑ دو، ان کی لگام کو چھوڑ دو۔ اللہ کی دربار سے حکم ہو چکا ہے، اونٹنی کو اللہ تعالیٰ خود حکم دے دیا ہے کہاں رکنا ہے، یہ خود جس گھر کے پاس رکے گی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ہر ایک عاشق اپنے جذبات میں سوچ رہے ہیں آخر وہ کون خوش نصیب عاشق ہیں جن کے گھر کے پاس یہ اونٹنی جا کے رکے گی، یہ اونٹنی کو دیکھتے رہے، حبیب پاک کا استقبال کرتے ہوئے ساری صحابہ کرام کی جماعت چل رہی ہے۔ آج پوچھتے ہیں حبیب پاک کا جلوس نکالنا کہاں لکھا ہے؟ ارے جلوس مصطفیٰ نہیں دیکھا؟ پیارے مصطفیٰ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، سارے صحابہ جلوس مصطفیٰ میں نہیں تو اور کہاں ہے؟ یہ جلوس ہی تو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرق یہ ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے جلوس نکالتے ہیں اور یہ خود ذات مصطفیٰ کے بیچ میں جلوس نکالتے چل رہے ہیں۔ اور آج کہا جاتا ہے اس طرح حبیب پاک کے ذکر کی محفلیں کرنا کیا صحابہ سے ثابت ہے؟ ہم کہتے ہیں ابھی خطیب ہند نے بتا دیا ہے کہ سارے سیرت کی کتاب، سارے سیرت سے احادیث شریفہ کے دلائل سے بتا دیا ہے، سارے صحابہ نے میلاد مصطفیٰ بھی منایا ہے، عطائے مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا ہے، حسن و جمال مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا ہے، سیرت مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حسن و جمال مصطفیٰ نہ بھی بیان کرتے، اگر میلاد مصطفیٰ نہ بھی بیان کرتے تو ہمارے لیے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں بنائی جاتی، اس لیے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے ذات مصطفیٰ دے دیا تھا۔ ارے ہم صرف ذکر کرتے حسن جمال مصطفیٰ کا، صحابہ کرام تو ذات مصطفیٰ کا حسن دیکھا کرتے۔ اگر ہم کو محشر کے میدان میں ذات مصطفیٰ مل جائے، بولو ذکر مصطفیٰ کرتے بیٹھیں گے، میلاد پڑھتے بیٹھیں گے یا وہ عظمت والے مصطفیٰ کا چہرے انور دیکھتے ہیں؟ ان کو ذات مل گئی تھی، ذکر کی کیا بات کرتے ہو؟ ذات مل گئی تھی، ہم تو حسن و جمال پڑھ رہے ہیں، وہ حسن و جمال دیکھا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں پوچھتے ہو صحابہ نے کب اس طرح محفل جمایا تھا؟ ہاتھ پوچھتے پوسٹریں لگا کے ایک جگہ جمع کرنا صحابہ نے کیا تھا کیا؟ صحابہ کو پوسٹر لگا کے جمع کرنا پڑتا ہے، یہ دنیا میں مست رہنے کا وقت ہے، دنیا والوں کو پوسٹر لگا کے بلانا پڑتا ہے، وہ دنیا میں کب تھے ہر وقت ذکر مصطفیٰ
के जमा करते, उनको मिसाल देते हो जमा करते थे क्या? वो जमा रहते थे इसलिए करने की जरूरत, ये बिखरे हुए हैं आवाज दे के जमा करना पड़ता ताकि आओ सहाबा का तरीका अपना। समझा ही नहीं दिया अल्लाह इनको समझा, हम लोगों को कितना अच्छा समझाया अल्लाह, इनको भी वैसे अच्छा समझाया। हाँ मैं अर्ज कर रहा था ये हबीब पाक का जुलूस जा रहा, सहाबा पीछे पीछे है, मुस्तफा आगे आगे। और जुलूस आज एक दिन की बात नहीं है। तुमने फतेह मक्का का जुलूस नहीं देखा? सीरत जरा इश्क़े मुस्तफा की ऐनक लगा के पढ़ो, फतेह मक्का का जुलूस मुस्तफा कैसा था नजर आएगा। जुलूस निकाले क्या? देखा ही कहाँ तुमने जुलूसों को अभी? अरे हम तो साल में एक मर्तबा निकालते हैं, हबीब जहाँ होते सहाबा का जुलूस ही होता था। ये जुलूस नहीं होता तो मैं हदीस शरीफ सुनाता हूँ, सुनिए। अल्लाह ताला ने अदब सिखाया, इंसान जिन्नात और फरिश्तों सारी कायनात को, ये मेरा हबीब है, अदब से रहना। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को मालूम था ये अल्लाह के हबीब है, अदब से रहना। आका जहाँ होते सहाबा वहाँ घेर लेते थे, और आका बैठते तो घेर के बैठते, चलते तो आका के साथ चलते रहते। जुलूस बैठे तो जुलूस, चल रहे हैं तो जुलूस, वो तो हरदम जुलूस करते, हम तो एक वक्त कर रहे हैं साथ। अरे सहाबा कहाँ कर रहे थे? अरे सहाबा हरदम कर रहे थे, हम उतने इश्क वाले नहीं, एक कर रहे हैं। वो इश्क वाले थे, हर वक्त जुलूस में रहते थे। जुलूस की एक मिसाल देने हदीस सुना रहा हूँ। हर वक्त साथ चलते थे तो हदीस शरीफ में आया है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के अदब को देख के, क्यों कभी पीछे पीछे रहते, आगे बढ़ने डरते अदब की वजह से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते, ऐ मेरे हिदायत के चमकते सितारों, मेरे पीछे पीछे नहीं आगे आगे चलते। क्यों? वजह बताते, मेरे साथ तुम ही नहीं चल रहे हो, आसमान और जमीन के मलाइका भी मेरे साथ रहते हैं। आगे तुम चलो, पीछे फरिश्तों को जगह छोड़ दो। अरे उनका जुलूस क्या था? सहाबा भी थे, मलाइका भी रहते थे। अब निकाले जुलूस कहते हो, हरदम यही जुलूस हुआ करता था। अरे अच्छा देखो जी, पढ़ते वक्त मोहब्बत की आयत लगा के पढ़ो, ये सब जुलूस नजर आते हैं, नजर आता है। समझे ना बात? अब चल रहे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ, कितने खुश होकर चल रहे हैं। ये खुशी मनाना, ईद खुशी को बोलते हैं, ईद मिलादुन नबी, नबी की मिलाद की खुशी। अरे मिलाद को कितना खुश हुए, खाली तशरीफ लाए तो घर खाली हो गया सब मदीने। उनकी तरह ने तो थोड़ी तो मोहब्बत रखो, हरदम मोहब्बत का इजहार करते हैं, साल में एक मर्तबा तो इजहार करो। नहीं करते तो नहीं करे भाई, मर्जी तुम्हारे, करने वाले को न को रोको ना। अब लोग ना कर रहे हैं, करने में नको करो, तुमको जबरदस्ती नहीं करते, हम ऐलान करते ऐ आशिकाने रसूल किसी पे जबरदस्ती मत करो, मर्जी सबकी, हम तो ऐलान करते मत करो। करे तो अच्छा है, नबी का नाम लेने वाला कामयाब हो जाता है, नहीं दे तो मर्जी है, मगर नाम लेने वाले को रोको न, को इतना करो और कुछ नहीं। हमारा मर्जा रोको, और हम जिक्र करे तो परेशान मत हो, खुश हो तो अच्छा है। जबरदस्ती नहीं है हमारी तरह, ऐलान है हमारा, कोई जबरदस्ती करने की आदत। अरे वो नाम है अल्लाह, जिसको शहादत देता है उसको मिल जाती है। सीट के लेने का नाम है ये। अरे वो अल्लाह की तरफ से होना पड़ता जी। अब जबरदस्ती करे तो अल्लाह के हाथ में, हमारे हाथ में क्या? अल्लाह जिसको खरीद करना चाहता है, मुस्तफा के नाम से भी मोहब्बत दे देता है, और अपने हबीब के नाम पे जमा होने की शहादत। अल्लाह की अता है जी, वो नवाजिश है, ये जबरदस्ती करने की चीज नहीं होती। समझिए ना, कोई जबरदस्ती की हरगिज चीज नहीं है, ये अल्लाह की अताओं से अता है। तो खैर बहरहाल सहाबा इकराम चले जा रहे हैं, इंतजार करें आखिर उठनी किस खुश नसीब आशिक के घर के पास में। चलते चलते ऊँटनी जाके कहाँ रुकी? हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर। सीरत हदीसों में यही है, वो जैसे ऊँटनी को देखे बैठते हुए पूरा सामान लेके घर की छत पे ले जाने लगे। प्यारे नबी साहब, ऐसा मत करो, घर के नीचे हिस्से में रखो हमारा सामान। क्या या रसूल अल्लाह, आका ऊपर रहेंगे, गुलाम नीचे?
तो आका ने फरमाया नहीं, मेरे से लोग मिलने आएंगे, नीचे में सहूलत रहती है, मैं नीचे रहूंगा और मेरा हुक्म ये है कि तुम ऊपर रहे। ये परेशान हो गया, आका का हुक्म ये है, मगर हम गुलाम बहुत ही गम से परेशानी से रहते थे, आका नीचे हम गुलाम ऊपर थे। बहरहाल हुआ क्या, एक जमाना आया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेहतरीन मकान आका के लिए तैयार हुआ, तो आका सल्लल्लाहु उधर तशरीफ ले गए। लेकिन प्यारे नबी की अजमत मोहब्बत कैसी, एक मर्तबा ऊपर घड़ा उलट गया पानी का, और पानी बहते हुए नीचे आ जा रहा था हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर शरीफ में। तो एक चादर थी आपके बदन अनवर पर, वो चादर निकाल के पानी में डुबा दी है, पूरा पानी जश्ब कर लिए ताकि हबीब पाक की खिदमत में कोई पानी का खतरा पहुंचने ना पाए आका की दरबार। और वो सब जाड़ों का मौसम था और ओढ़ने के लिए सिवाय इस चादर के कुछ नहीं था, रात भर जाड़े में अकड़ते रहे, लेकिन मुस्तफा की शान में लफ्ज़ होने। ये उनका इश्क था, ये उनकी मोहब्बतें थी। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम और उलमा लिखते हैं, ये ऊँटनी जाके जिस 2 मंजिला इमारत के पास ठहरी, ये वही इमारत है जिसको 1000 साल पहले तुब्बे हिमयरी बादशाह ने नबी की मोहब्बत में तामीर किया। ये अल्लाह की अता है, हबीब की शान रहमत है, 1000 साल पहले के आशिक की भी तमन्ना पूरी की जा रही है, उनकी तमन्ना को भी रद्द नहीं किया जा रहा है। ये वही घर है जो अल्लाह के हबीब की मोहब्बत में एक यहूदी बादशाह ने तामीर किया। इनको भी अल्लाह नवाज रहा जो 1000 साल पहले से मोहब्बत करते आ रहे हैं। फिर उन्होंने वो चिट्ठी दिया था बड़े आलिम को, वो चिट्ठी पहुंचाई गई, ये 1000 साल गुजरने के बाद। अब 1000 साल बोलो, सैकड़ों साल बोलो, कैसे हम बातों में उलमा के इख्तिलाफ में होता, एक जगह जमा करे तो 1000, खोल दे तो सैकड़ों। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो चिट्ठी जो बड़े आलिम के पास थी बादशाह की तरफ से, खिदमत रिसालत में पेश की गई। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, क्या था उसमें देखिए, 1000 साल के यहूदी बादशाह ने हबीब पाक की खिदमत में क्या लिखा है। उसमें लिखा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जिंदगी ने वफा किया आपकी विलादत के बाद सादत तक, और मैं जिंदा रहा, आपका जमाना पाया, तो मैं आपकी खिदमत में एक वजीर और एक गुलाम की हैसियत से जिंदगी गुजारूंगा। और अगर मेरी जिंदगी ने वफा नहीं किया, मैं आपके जमाने को ना पा सका, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गवाह रहिए, मैं अभी से ही आपका कलमा शहादत पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप मेरे इस्लाम के गवाह हो जाइए, मैं आपकी बारगाह में गुलामी का ऐलान। और आगे लिखा, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ियामत का दिन होगा तो आप मेरा हाथ पकड़ के मेरे गुनाहों की माफी करा के रब्बुल आलमीन की दरबार में सिफारिश करा के मुझे जन्नत में दाखिला देना। 1000 साल पहले हबीब पाक के अदब व ताज़ीम का मामला यह है, तो मालूम हुआ अल्लाह जब से दुनिया बनी है तब से मुस्तफ़ा की अजमत के चर्चे कर रहा है। हर आसमानी किताब में जिक्र मुस्तफ़ा है, हर नबी ने अल्लाह के हुक्म से जिक्र मुस्तफ़ा क्या उनकी शान बता। अगर ये शान नहीं जानते, नहीं बताई जाती, तो प्यारे नबी की तशरीफ आवरी से पहले इतना अदब कैसे होता। आए नहीं ऐलाने शाह, कलमे शहादत करें, उलमा पूरे के पूरे मोहब्बत रसूल में अपना शहर बदल गया। इससे समझ सकते हैं अल्लाह ने हबीब का कैसा मुकाम दिलों में बताया है। ये एक वाक़या हुआ, अभी एक 2 वाक़े बोल देता हूँ ताकि कई वाक़े हम 3 हुए तो कई बोल सकते उसको, अब 2 बोले तो कई नहीं, 2 ही बोलना पड़ता, एक बोलना होता, कई कम से कम 3 तो होना पड़ता। मैंने वादा कुछ वाक़या बयान करने का, एक वाक़या सुनाता हूँ ताकि और मेरी बात में पुख्तगी आ जाए। एक यहूदी आलिम की बात करता हूँ, उसके बाद एक ईसाई आलिम की बात करके बात खत्म कर देता हूँ। अरे यहूदी ईसाई आलिम हो के हबीब पे इतना फिदा हो रहे हैं,
तुम तो हबीब का कलमा पढ़ने के दावा करते हो, तुम्हें कैसे फिदा होना चाहिए। हमको इसमें इबरत भी है, नसीहत भी है। एक यहूदी आलिम जिस दिन प्यारे नबी की विलादत बासादत हुई, सुबह होते ही मक्के की गली गली छान मार रहे, इधर गली में गए उधर गली में गए, क्यों छान मार रहे हैं? पूछ रहे हैं यहाँ कोई लड़का पैदा हुआ क्या? इधर जा रहे हैं, पूछ रहे हैं यहाँ लड़का पैदा हुआ क्या? हर तरफ से खबर आ रही, कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान की गली में गए, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की खबर मिली कि इस घराने में एक लड़का पैदा हुआ। तो कहा जरा बताओ, मैं देखना चाहता हूँ। दिखाया गया लड़के को, तो चेहरे अनवर देखते देखते मस्त हो गए। कहा जरा पीठ अनवर दिखाओ। पीठ कपड़ा हटा के पीठ मुबारक दिखाई गई, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीठ अनवर दिखाई गई, देखते रहे, देखते देखते बेहोश गिर पड़े। यहूदी आलिम बेहोश गिर पड़े। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर शरीफ में ले जाया गया। अब कुछ वक्फे के बाद यहूदी आलिम को होश आया। होश आने के बाद लोगों ने पूछा, क्या तुम्हारे हालात समझ में नहीं आए? कहाँ कोई लड़का पैदा हुआ क्या? कोई लड़का ऐसे बेचैनी से देखे, देखते देखते बेहोश कहीं को हो गया क्या तुम्हारे को? तो कहा तुमको नहीं मालूम, मैं इसलिए बेहोश हो गया, अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था कि मेरी औलाद में आखिरी नबी को पैदा कर। हम यहूदी लोग भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, और ये प्यारे नबी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। मगर फर्क ये है, ये हमारे दादा के भाई की औलाद थे। हम समझते थे हमारे दादा की औलाद में होंगे वो आखिरी नबी, लेकिन हमारे दादा के भाई की औलाद से हो गए। पर तो क्या बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के खानदान से ही यहूद है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कह रहे हैं हम समझते थे कि इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में हम हमारे खानदान में होंगे, लेकिन ये हमारे खानदान छोड़ के हमारे दादा के भाई के खानदान में हुए। दादा के भाई भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद, दादा भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद। आपने दुआ किया था मेरी औलाद में आखिरी नबी को पैदा फरमा। हम समझते थे हमारे खानदान में होंगे वो आखिरी नबी, लेकिन ये हमारे खानदान में नहीं हुए, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान में हुए। मैं इस गम से बेहोश गिर पड़ा, इतनी बड़ी दौलत से हमारा खानदान महरूम हो गया। अभी प्यारे नबी नहीं बोले मैं नबीउल्लाह हूं, मैं रसूलुल्लाह हूं, आवाम में ऐलान नहीं किए हैं। अभी एक यहूदी आलिम कहते हैं आखिरी नबी है। कैसे मालूम? अरे कुरान ही में जिक्र मुस्तफा नहीं, हर अगली किताब में जिक्र मुस्तफा है। पढ़ के अहले किताब जानते थे मुस्तफा की शान क्या है। अल्लाह ने सिर्फ जिक्र ही नहीं किया, चेहरे मुबारक की अलामत भी बताया, हुस्न और जमाल क्या है वो भी बताया, पुश्ते अनवर की निशान भी बताया, पीठे मुबारक पर क्या अलामत होगी आखिरी नबी की। ये गौर से देख रहे थे, किताबों में लिखा है आखिरी नबी की अलामत यह है कि उनकी पुष्ट पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा। पहले पहले बारीक बारीक हारियों में नजर आता था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े होते गए, उभरता रहा, यहाँ तक कि वो कबूतर की अंडे की तरह उभर गया था, जिसपे अलानिया मोहम्मद रसूलुल्लाह नजर आता था। ये प्यारे नबी के आखिरी नबी होने की दलील। अब इनसे पूछा गया क्या बात, तो कहा ये आखिरी नबी में चेहरा देख के पहचान लिया, पीठे मनवर देख के पहचान लिया। तो मालूम हुआ अल्लाह सिर्फ जिक्र ही नहीं किया था, हुस्न जमाल भी बताया था, पुश्ते अनवर की शान भी बताया था, हर अदा हर निशानी अल्लाह ने बताया। नहीं बताता तो अल्लाह ये देख के कैसे पहचानते। बल्कि यही नहीं, हबीब पाक की मिलाद होगी तो जमीन में क्या अलामत जाहिर होंगे वो भी बताया, आसमान में क्या अलामत जाहिर होंगे वो भी बताया। इसलिए कि यही यहूदी आलिम कहते हैं मैंने सुबह सुबह ये तलाश इसलिए किया कि हमारी अगली किताबों में लिखा है आखिरी नबी जब पैदा होंगे, सुबह सादिक पैदा होंगे, तो उससे पहले की शाम में एक खास सितारा खास जगह तुलू होगा, तो समझना सुबह सादिक आखिरी नबी पैदा होने वाले हैं। मैंने रात में वो खास सितारे को खास मुकाम पे चमकते हुए देखा है, जो अगली किताबों में लिखा था कि वो सितारा चमकना आखिरी नबी के पैदा होने की अलामत है। रात में वो सितारा चमकेगा, सुबह सादिक नबियों का सरदार पैदा होगा। इसलिए रात भर नींद नहीं आई उस मुस्तफा को देखने के लिए।
صبح صبح تلاش کرتا رہا، کیا معلوم ہوا؟ اللہ ذات مصطفیٰ بھی نہیں بتایا، بلکہ ذات مصطفیٰ کی میلاد کے بعد زمین میں کیا ظاہر ہوگا نشان، آسمان میں کیا، زمین و آسمان سب بتا دیا اللہ نے۔ اب کس بل میں سے کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ پہلی مرتبہ ہم لوگ کر رہے ہیں؟ ارے یہ چلا آ رہا ہے، ابھی آدم علیہ السلام زمین پہ اترے نہیں، تب سے ذکر مصطفیٰ چل رہا ہے۔ سیدی شیخ الاسلام عریف اللہ حافظ محمد انوار اللہ شاکر اللہ علیہ رحمۃ اللہ بانی جامع نظامیہ لکھتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں روح انور ڈالی گئی تو آپ نے سارے انور اٹھا کے دیکھا تو عرش پر نظر پڑی، کیا لکھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بعد میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی زمین پہ آدم علیہ السلام آئے نہیں، اللہ نے اپنے نام سے مصطفیٰ کا نام ملا کے سارے فرشتوں میں بتا دیا یہ میرا محبوب ہے۔ اس وقت سے چل رہا۔ یہ دوسرا واقعہ تھا، میں بولا اب تیسرا واقعہ سنا کے بیٹھا۔ یہ عیسائی عالم کا واقعہ ہے۔ یہودی بھی دیکھو تو تعظیم کرتے نظر آ رہے ہیں، عیسائی عالم دیکھے بھی تو عزت کرتے نظر آ رہے ہیں، اسی لیے کہ انہوں نے اگلی کتابوں میں پڑھا ہے آنے والے نبی شان والے نبی ہے، آخری نبی سلطان الانبیاء بن کر آئیں گے، رسولوں کے امام بن کر آئیں گے۔ اس لیے ان کے دلوں میں ادب اکرام بیٹھ گیا تھا۔ اللہ نہیں بتاتا تو بیٹھتا کیسا جی اتنا اکرام بولو گے؟ ان کا اکرام بتا رہا ہے کہ اللہ نے بتا دیا تھا۔ آج کہتے ہم لوگ منا رہے ہیں پہلی مرتبہ نکلا، صحابہ کہاں کرے رہے، صحابہ کیا انبیاء کرتے رہے، یہاں تو یہ ثابت ہو رہا ہے خود اللہ نے کلام اپنے ہر کتاب میں اتارا۔ دیکھو واقعہ کیا بتا رہے، آخری کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں میں۔ ایک مرتبہ جب آپ کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو آپ کے چچا نے کہا بیٹا تم بھی ہمارے ساتھ تجارت کے قافلے میں چلو۔ مکہ سے ملک شام کو تجارت کے قافلے نکلا کرتے تھے، تو اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال کی ہو تو آپ کے چچا نے کہا تم بھی بیٹا ساتھ ہو۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 8 سال کی عمر میں تجارت کے قافلے کے ساتھ شریک ہوئے، مکے کے کئی تاجروں کے ساتھ۔ حبیب پاک بھی جلوہ فیدن ہے۔ اب چلتے چلتے ہم جب ملک شام کو پہنچے، ایک درخت کے نیچے سب بیٹھ گئے، اتنے میں اس درخت کے روبرو ایک عیسائی عالم کا گھر تھا۔ وہ بلندیوں پہ سے، گھر کی بلندیوں سے نیچے اتر کر آئے، اتر